Uh, Good evening, everyone, and thank you for joining us today. It is my great pleasure to introduce our distinguished speaker. We are joined today by Dr. Syed Adil Hussain Gardezi, who is presently serving as a consultant microbiologist and assistant professor of pathology. Dr. Gardezi has extensive experience in the field of microbiology, including unique insights gained from working during the Ebola virus disease epidemic in Liberia in 2014 and significant experience during the COVID-19 pandemic in Pakistan. Beyond his clinical expertise, Dr. Adil Gardezi possesses a profound passion and considerable experience in public speaking. He is highly regarded as one of the most sought after facilitators of uh, communication skills workshop for leading medical training institutes, demonstrating his skills in effective conveying complex information, especially College of Physician and Surgeon Pakistan. Let me add to this written introduction that I'm his student, and I No, have been. It's been an honor that I've been in his teams in debating competitions, and he has won many all Pakistan level debating competitions, and he has been an inspiration always. So over to you, Sir Gardezi. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Dr. Umar, for this full of praises. I don't know whether even if I deserve it or not, but thank you very much for all the sentiments and all the comments that you have shared. So, first of all, I'm grateful to Dr. Umar, especially, and Mubahis for giving me this platform to share the experiences about uh, the journey of becoming a specialist, what hurdles usually they are faced, and how to tackle those hurdles and how to uh, come out of the situations, the demanding situations. So there was a particular reason for selecting this topic. Actually, throughout my life, like initially the part of the academic years, the formative years, I've been actually trying to just focus on the academics like anybody else. But once the fellowship was obtained, and then I got posted to Armed Forces Institute of Pathology for the first time in 2015 as a consultant. That was the time which actually transformed my life at a different path. That path was not actually away from the microbiology, but actually that path was about bringing change into the people's life as a trainer. I became supervisor of training. And then also, I had profound interest in communication skills from the very beginning, owing to my debating career, as Umar already mentioned. So that debating experience, the communication skills thing, and my actions as a trainer, that actually took me to path that how to bring change in someone's life. I don't claim to be changing people's life, actually, but sharing your experiences and providing guidance to the people who seek guidance from you, that is actually one of the paths that gives you immense pleasure when people start taking up your advices, and even sometimes you also learn from the advices that you give. वो कहते हैं ना कि आपकी एडवाइस खुद आपके ऊपर भी बाज़ औक़ात असर करती है, और फिर उसके बाद different experiences and all these things start adding up. So this topic, becoming a specialist, expectations and challenges, you can say it is actually linked to all that quest of ब्रिंगिंग चेंज इनटू पीपल्स लाइफ। क्योंकि होता ही है कि हमने भी अपने उस्तादों से ये देखा कि जरूरी नहीं है कि आपको लेक्चर्स और हर वक्त जनाब वार्स दिए जा रहे हैं और सब कुछ दिया रहे, बाज औकात छोटी सी बात आपको क्लिक कर जाती है किसी बहुत बड़ी चीज के अंदर भी, और वो चीज आपके लिए एक मशल राह साबित होती है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से वो निजात देती है। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू कोट माई लेट फादर, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। उन्होंने एक बात मुझे की एक दफा, वाकया बड़ा लंबा है, मैं सिर्फ आपको क्रक्स बता रहा हूँ, कि उन्होंने एक बात कही कि अदील मियां, इफ यू हैव टू डू समथिंग डू इट ग्रेसफुली। ये बात मुझे ना बिल्कुल कट करके दिमाग में लगी। इफ यू हैव टू डू समथिंग डू इट ग्रेसफुली। एंड दिस इज वन ऑफ द एडवाइसेस जो शायद जिंदगी में मुझे सबसे ज्यादा काम आई। जब आप किसी पोजीशन में होते हैं, जब आप किसी को कुछ किसी को हेल्प आउट कर सकें, या यू हैव टू परफॉर्म अ टास्क और आपको वो टास्क पड़ गया, आप नहीं भी चाहते बट आप मजबूर हैं करने के, फिर ले तो लाल से काम नहीं लेना, फिर उस काम में आपने करना नहीं, देन डू इट ग्रेसफुली। सो इसी तरह इट वाज जस्ट एन एग्जांपल
कि इसी तरह ये जो ब्रिंगिंग चेंज इन लाइफ, कम्युनिकेशन स्किल्स वर्कशॉप्स, webinars like these and lectures like these, so you never know कि कब किसको क्या चीज स्ट्राइक कर जाए. That is why I've been actually actively involved into all such activities. So coming back to this topic, the becoming a specialist, expectations and challenges. हमारे ऑडियंस में बहुत सारे लोग, कुछ लोग जो है भी हैं जो माशाल्लाह वेल राउंड और एस्टेब्लिश्ड क्या नाम है स्पेशलिस्ट हैं भी, और इसके अलावा भी जो लोग हैं जो कि स्पेशलाइजेशन के सफर की तरफ चल रहे हैं. सो इस स्पेशलाइजेशन के सफर में आगे क्या होता है? स्पेशलिस्ट बनने जा रहे हैं बच्चा, लाइफस्टाइल चेंज होगा, लाइफ में बड़ी चीजें जो है वो डिफरेंट होनी शुरू हो जाएंगी, और जनाब क्या नाम है, शायद धन बरसना शुरू हो जाए और बहुत कुछ होना शुरू हो जाए. आपके बॉसेस, और यार ये तो पार्टी मचाई हुई है, लुट मचाई हुई है इन्होंने, तो ये तो जो है वो क्या नाम है पता नहीं स्पेशलिस्ट बनने आए हैं, क्या करने आए हैं, लुट मचाई हुई है. हमारा अपना क्या ख्याल होता है? हम बहुत अच्छे लोग, हम बहुत अच्छे इंसान, हम लोगों का बहुत ख्याल करते हैं, हम अच्छे. मुझ में क्या बुराई है? मुझे तो बुराई हो नहीं सकती. गलती, गलती इज नॉट समथिंग दैट इज मेंट फॉर मी, इट इज समथिंग फॉर द अदर पीपल्स टू मिस्टेक, टू कमिट मिस्टेक्स. मिस्टेक्स आर नॉट फॉर मी. आई डोंट हैव एनी फॉल्ट्स. I am a good person, but sometimes yes, people falter, but generally I'm a very good person. Or मतलब ये कि I'm becoming a very good specialist. I'm a good specialist, but actually sometimes you falter, sometimes faults hit you, sometimes you suffer because so many things. So बताने का मकसद ये स्लाइड का कि एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस और रियलिटीज में एक वाज़ेह गैप होता है, और इस गैप के दौरान डिसअपॉइंटमेंट्स भी हैं, इस गैप के दौरान फेलियर्स भी हैं, इस गैप के दौरान तकलीफें भी हैं, स्ट्रगल्स भी हैं. इस गैप को हमने कैसे कवर करना है? माय टॉक इज अबाउट दैट. सो हम स्पेशलिस्ट क्यों बनना चाहते हैं, या चले यहां पे मैं एक बात करना चाहूंगा, स्पेशलिस्ट होता कौन है? स्पेशलिस्ट को अगर मैं कुछ अल्फाज में डिफाइन करना रहे हो ना कि स्पेशलिस्ट कौन है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि स्पेशलिस्ट वो बंदा होता है जिसको थोड़ी चीज के बारे में बहुत ज्यादा पता हो. एक जनरल फिजिशियन जो होता है उसको क्या होगा, ब्लड प्रेशर की भी थोड़ी बीमारियों को पता होगा, डायबिटीज को पता होगा, इसका भी पता होगा, स्किन का भी पता होगा, एक्सरे को भी थोड़ा सा देख लेगा. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पेशलिस्ट, उसको उस थोड़ी चीज के बारे में बहुत ज्यादा पता होगा. सो व्हाट वी एक्सपेक्ट then when we are stepping into the world of the specialization, our expectation is this hanging ball phenomena, जैसे तस्वीर में आपको नजर आ रहा है कि we are going to hit one ball and expectations are going to be translated in the same way till the last ball. जबकि एक्चुअली जैसे मैं बात कह चुका हूं, यहां पे इस तरह नहीं होता, बिकॉज हम जो स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं. स्पेशलाइजेशन या सक्सेस, इट इज पेड इन द करेंसी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. We expect privileges to come into our way when we achieve success. But we have to remember this thing that such a kind of success is always accompanied with a responsibility, एक appendage इसके साथ लगा हुआ responsibility का. So आपको जो लग रहा है कि आप अगर सक्सेसफुल हो गए हैं तो अब तो प्रिविलेजेस आने चाहिए, पीपल शुड लुक टुवर्ड्स मी, मेरे पास पेमेंट, मेरे पास अमाउंट मनी ज्यादा आएगी, मेरे पास पैसा ज्यादा आएगा, मेरे पास इख्तियार ज्यादा आएगा. बट यहाँ पे क्या हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार हैं जो कि हमारी सक्सेस के साथ हमें मिली है? ये वो चीज है जिसपे अमूमन लोग फॉल्टर कर जाते हैं. बाय सम मींस वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, मेहनत कर ली, सारा कुछ कर लिया, लेकिन वो अच्छे स्पेशलिस्ट नहीं बन पाते क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते. रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करना, इट इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन ओनिंग द सक्सेस, बिकॉज व्हेन यू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज द पॉइंट where you prove yourself worthy of that success. वो कई लोग आपको मिलेंगे सर्विस में, आप अपने अपने अपनी इसके अंदर जान दे देंगे, डिसीजन नहीं देंगे. भाई बी रिस्पॉन्सिबल. A junior specialist far more who is responsible is far more better than a person who is relatively less responsible. So यहां पे अब मैं आना चाहूंगा कि जनाब हम कब अपनी स्ट्रगल्स वगैरह को साइकोलॉजिकली हम उसको कैसे उसको अचीव कर पाते हैं. दिस इज मैस्लोज हायरार्की.
Maslow's hierarchy of self-esteem, self-actualization, esteem, love and belonging. I'm no psychologist, लेकिन since चूंकि ये मेरी मुख्तलिफ स्टडीज वगैरह में ये मैं I've been through this. मैस्लो साहब ने 1943 में एक ट्राइंगल एक बनाया जिसके मुख्तलिफ उसने 5 लेवल्स को बयान किया और उसने कहा कि जनाब ये मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, जब ये अचीव होना शुरू होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम डाउन हेयर, ये नीचे से अचीव होते हैं तो आप अगले लेवल की तरफ मूव ऑन करते हैं और उस पर ऊपर लेवल, उससे ऊपर लेवल और उससे ऊपर लेवल। ब्रीफली मैं उस पर जाना चाहूंगा। सबसे पहली नीड ह्यूमन बींग्स की साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स, एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, खाना पीना। ठीक है जी, आपका खाना पीना हो, आपको आपको नींद नसीब होती हो, आपको हवा हवा तो सांस ले रहे हैं, बीमारी नहीं है, साफ पानी अवेलेबल है, फूड अवेलेबल है, क्लोथिंग अवेलेबल है। जब आपकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स ऐड हो रही है, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। ओके, नाउ नौकरी चाहिए, रिसोर्सेज मेरे हाथ में हो, मैं सिक्योर एनवायरनमेंट में हूँ, ठीक है, मैं जो है जनाब सेहत याबी हो, और अगर सेहत खराबी हो तो मेरे पास सेहत हासिल करने के तरीकाकार भी हो, कुछ मेरे पास ठिकाना भी हो, मेरे पास बिलोंगिंग्स भी हो। जब आप सेफ्टी नीड्स के बाद आ जाते हैं, अगली स्टेज पे आ जाते हैं, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, लव एंड बिलोंगिंग। You have a family, you have friends, you have intimate people around you, you're connected to the people, you're social, you enjoy life, you start living, enjoy life. यहां पे मैं आपको थोड़ा सा, अब आप ये देखिए कि अगर लव एंड बिलोंगिंग वाली जगह पे अगर नीचे से एक भी चीज निकल जाए तो यू ड्रॉप डाउन। If you have a family, sense of connection, but you're unemployed, where do you go? You go down there. You get down here. आप ऊपर से नीचे आ जाते हैं। नींद खराब है, क्लोथिंग नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, आप नीचे चले जाते हैं। नो, कमिंग बैक टू दिस थिंग, जब आप एक बार लव एंड बिलोंगिंग आपके पास, इंटीमेसी भी वो फैमिली भी आ गई, फ्रेंडशिप भी आ गई, सेंस ऑफ कनेक्शन भी आ गया, जब आप इन तमाम चीजों को हासिल कर लेते, देन यू गो फॉर द नेक्स्ट लेवल, रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, स्टेटस, recognition, स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम। दिस इज द पॉइंट जहां पे आप अब स्पेशलिस्ट बनने की स्ट्रगल में हैं। हम में से ज्यादातर लोग इन 3 चीजों से अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट इज वाई हम यहां पे इस ट्राइंगल में इस जगह पे स्ट्राइव कर रहे हैं हासिल करने की। और जब हम ये चीजें हासिल कर लेते हैं, दैट इज द पॉइंट जहां पे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर जाते हैं, द डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। अच्छा स्पेशलिस्ट बनना है, डिग्रियां हासिल कर ली, लोगों के साथ अपनी रेपुटेशन बना ली। अब अगर इनमें से कोई एक चीज निकल गई, आप इसमें से वापस ड्रॉप करना शुरू कर देंगे। सो इवन मैस्लो ने भी कहा कि ये कोई इतना एब्सोल्यूट किस्म का वो ट्राइंगल नहीं है, इसके अंदर, ट्राइंगल के अंदर कुछ डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल एंड डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट चीजों पर नीचे हो जाती हैं, बट नॉनदलेस दिस इज द ट्राइंगल जो कि आपको एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ लेके जा रहा है, आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन इसके लिए ये जो नीचे की 3 चीजें, ये बेसिक्स है, इनका मौजूद होना जरूरी है। नाउ जब आप किसी एक सिस्टम के अंदर दाखिल होते हैं तो इस सिस्टम के अंदर आपकी स्ट्रगल स्टार्ट। इमेजिन दिस पर्सन इज यू आर एंटरिंग इनटू द सिस्टम। आप इस सिस्टम में पीछे मैस्लोज हायरार्की की सारी चीजें हासिल करते हुए आए, नाउ यू आर स्ट्रगलिंग फॉर द सेकंड लास्ट पार्ट के जिसमें आप सेल्फ एस्टीम और इसके ऊपर आ रहे हैं, रिकग्निशन के ऊपर आ रहे हैं, यू वांट टू बी रिकग्नाइज्ड एज अ स्पेशलिस्ट। आप इस पीछे पे आ रहे हैं, यहां पे आपके पास कुछ स्ट्रगल्स हैं। एक अंदरूनी स्ट्रगल्स है और एक बैरूनी स्ट्रगल्स है। अंदरूनी स्ट्रगल्स में आपकी अपनी स्ट्रगल, आपकी फैमिली ट्रबल्स, फैमिली की प्रॉब्लम्स, फैमिली की चीजें आपने वो एड्रेस की हुई है पिछली 3 चीजों में। बट अगली स्ट्रगल क्या आ रही है? योर पीयर्स, अच्छे कॉलीग्स, बुरे कॉलीग्स, अच्छा सुपरवाइजर, बुरा सुपरवाइजर, अच्छा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, बुरा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, कनिंग लोग, अच्छे लोग। सो यू पीयर्स। अब आपकी परफॉर्मेंस और उस गोल को जो आपने अचीव करना है, यहां पे स्ट्रगलिंग पहली चीज आपके पास ये है कि दीज आर द पीपल हु आर गोइंग टू अफेक्ट योर पार्ट्स, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। आप अपने पहली फैमिली के लिए और बाकी चीजों के लिए तो आपने किसी तरह मैनेज कर लिया। नाउ व्हेन यू आर हियर, तो आपके पास पीयर्स, यू डोंट चूज योर पीयर्स, यू जस्ट हैपन टू बी विद देम। सो दिस इज समथिंग जहां पे आपने उनके साथ कोलैबोरेट करना है, उनके साथ कंपीट करना है, उनके साथ आपने सारी चीजों को लेके चलना है। और इसके बाद आपकी स्ट्रगल की जो दूसरा मेन इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर है, दैट इज द सिस्टम इन योर वर्क। कुछ लोग
सिविल हायरार्की में काम कर रहे हैं, कुछ फौजी हायरार्की में काम कर रहे हैं, कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, कुछ बिजनेस सेक्टर में काम कर रहे हैं। हर सेक्टर की, हर इसकी डायनेमिक्स अपनी अपनी होती है। इनकी डायनेमिक्स अपनी अपनी जरूर होती है, लेकिन इनका ओवरऑल काम करने की जो ओवरऑल आप समझे जो बेसिक फॉर्मूला है वो एक ही है। और वो ये होता है कि हर सिस्टम अपने अंदर लोगों को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद जो उस सिस्टम के साथ अलाइन कर जाते हैं उनको अपने पास रखता है, और जो अलाइन नहीं करते उनको उगल देता है, and they turn out to be misfit for the systems. So when you are stepping into a point कि जहां पे आप उस सिस्टम में एंटर कर गए हैं, how fit you are, this is the adjustment that you're going to make. Nobody is bigger than the system. आपने अपने आप को सिस्टम में एडजस्ट करना है. That is why you often hear people saying मैं सिस्टम में मिसफिट हूं, मैं सिस्टम में नहीं चल पा रहा. क्यों? वहां पे आपके अंदर वो कंपैटिबिलिटी नहीं है, ये सिस्टम ही खराब है. ये एक्चुअली ब्लेम गेम शिफ्टिंग चीज है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे. सो सो आपने देखा कि अब आप जब कहीं स्पेशलिस्ट बनने के लिए आप किसी जगह, इफ यू आर स्टेपिंग इनटू सम प्रोग्राम, द इंटरनल फैक्टर्स, दैट इज द फैक्टर्स जिसके ऊपर हम पहले मैस्लोज हायरार्की की बात कर चुके हैं, एंड देन द एक्सटर्नल फैक्टर्स के आपके पीयर्स, आपके बॉसेस, और फिर उसके बाद आपके सिस्टम में काम कर. दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द डिटर्मिनेंट्स जो कि आगे आपको लेके चलेंगे. अब सवाल ये पैदा होता है, इतनी मुसीबतें, ओ यार हम मतलब किधर आ गए, हम फैमिली को भी पूरा करें, हम इधर भी पूरा करें, हम सिस्टम से भी लड़ें. तो भाईजान किसने कहा आप वेकेशन पे आए हैं? दिस इज समथिंग यू हैव टू स्ट्राइव अगेंस्ट. आपने इन सब चीजों को पार करना है तो आप आगे चलेंगे. सो अब आप आगे सिस्टम में, अब आप आगे सिस्टम में, और आपने अब लर्निंग का सफर तय करना है. लर्निंग को जनरली चार चीजों में तकसीम किया, चार स्टेजेस में तकसीम किया गया. 1 2 3 4. Level 1, unconscious incompetence. This is the बिल्कुल basic level. Unconscious incompetence. I don't know what I don't know. I don't know what I don't know. अभी आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे आए. जब आप स्पेशलाइजेशन पे आ रहे हैं, आपने एमबीबीएस किया हुआ है, आपको मोटा मोटा चीजों के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, आप अपनी स्पेशलिटी पे जब आ रहे हैं तो आप उस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं, कुछ लर्निंग कर रहे हैं, तो समवेयर आई वुड से कि जब आप स्पेशलाइजेशन पे आते हैं तो आप लेवल 1 और लेवल 2 के थोड़ा सा बीच में होते हैं, मोर टुवर्ड्स द लेवल 1, बट still in between level 1 and level 2. Unconscious incompetence, I don't know what I don't know. And then the level 2 is I know what I don't know. Conscious incompetence. मिसाल मैं देता हूं. एक बंदा सिस्टम में आया और आके उसने स्पेशलाइजेशन के लिए किसी स्पेशलिटी को ज्वाइन किया. अभी तो बिल्कुल नया रजिस्ट्रेशन कर रहा है, बोतराया हुआ फिर रहा है, अल्लाह मियां की गाय बना हुआ है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है. इतनी देर में उसको कोई पेशेंट मिलता है, डॉक्टर साहब आप इधर ही स्पेशलिस्ट हैं, ये वो है. अब आप आबा ताबा कर रहे होते हैं क्योंकि आपको पता ही कुछ नहीं होता, आपको ये भी नहीं पता होता कि आपको क्या नहीं पता. सो आप उस लेवल में, बट विद टाइम व्हाट हैपेंड, यू स्टार्टेड गेनिंग द थिंग्स. इस स्टेज के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मोटिवेशन. जिसके अंदर ये मोटिवेशन होगी वो अगले लेवल पे जंप करे, एंड दैट लेवल इज कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस. यू स्टार्ट रियलाइजिंग मुझे क्या कुछ नहीं आता, and at that point you start having the quest of learning the things. इस स्टेप के ऊपर आप सीखना शुरू करेंगे. ओके मैंने ये प्रोसीजर सीखना है, मैंने ये प्रोसीजर सीखना है, इस प्रोसीजर को फला जगह हो रहा है, लेट्स गो देयर एंड लर्न इट. Your motivation actually keeps you going and you start moving more towards this part. Cautious incompetence. You know your limits and you start working towards extending those limits. आप अपना दायराकार बढ़ाने की जस्ट में रहते हैं. यहां पे एक बड़ी मजेदार चीज होती है, अगर इस मौके पे मोटिवेशन लॉस हो जाए, वापसी का सफर शुरू हो जाता है, क्योंकि आप नई चीजें लर्न करना खत्म कर देते हैं. और फिर उसके बाद इस मौके पे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? क्या स्टूडेंट के अपने ऊपर है? आई बिलीव यहां सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सुपरवाइजर के ऊपर, हु शुड कंटिन्यूसली इंजेक्ट अ मोटिवेशनल थिंग. अब यहां पे हमने सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी बुरी चीज है. इस मोटिवेशन में ना सिर्फ सुपरवाइजर्स बल्कि मैं सीनियर कॉलीग्स की भी बात करूं. अनफॉर्चुनेटली कुछ रवैयों में, आप में से जो लोग भी स्पेशलाइजेशन में हैं या अपने रवैयों को अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, आपको एक कैटेगरी मिलेगी लोगों की जो कि अभी सीख ही रहे होंगे, आपसे थोड़े से सीनियर होंगे, बट दे वुड स्टार्ट लुकिंग डाउन अपॉन यू.
और यार तुझे तो ये भी नहीं पता, वो तू तो पहले दिन ये कर रहा था। भाई तो आप क्या घर से सीख के आए थे? ये क्यों आपको कर रहे होते हैं डाउन? ये इसलिए आपको डाउन कर रहे होते हैं कि कल कला को आप जब कभी बड़े बने तो साइकोलॉजिकली आप इनसे इंफीरियर रहे। सी हाउ नेगेटिव अप्रोच इज दैट। इफ यू एवर हैपन टू सी दिस थिंग हैपनिंग टू यू, वो वक्त तो गुजार दें, लेकिन खुदारा इस चीज को वहीं खत्म करवा दीजिएगा, अपने अगलों के साथ ना कीजिएगा। बी सपोर्टिव टू द पीपल, क्योंकि आपका एक जुमला, आपका एक एक्ट किसी और को इस जगह से निकाल के इस जगह पे ला सकता है। किसी जूनियर को ये कह देना, यार तू नहीं भाई मुझे सीखता दिखाई दे रहा, तुम्हें तो 10 दफा बात बताई है, तुम्हें तो सीख नहीं रही, 10 दफा क्या, एक दफा बताई होगी, जो भी बताई होगी। अगर ये बहुत नाजुक स्टेज होती है, इस मौके पे सुपरवाइजर और सीनियर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बी अ गुड सीनियर इफ यू हैव, बी अ गुड सुपरवाइजर इफ यू हैव। सो वंस मूविंग फॉरवर्ड, आपको जब पता लगना शुरू हो गया कि कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस क्या चीज है, नाउ आपको अपनी लिमिटेशंस पता है, यू आर अवेयर कि मुझे ये चीजें नहीं आ रही, आप उन चीजों को लेके आहिस्ता 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 अब आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और इसके बाद मिस्टेक्स, गाइडेंस, इसके साथ यू मूव ऑन टू द कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। मिस्टेक्स का लफ्ज मैंने यहां क्यों इस्तेमाल किया? मिस्टेक्स, फेलियर्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैपन। इसके ऊपर मैं अलग एक इसके ऊपर सेक्शन पे बात करूंगा। बट हैविंग सेड दैट, आप अपनी मिस्टेक से लर्न करते हैं, और फिर उसके बाद यहां पे गाइडेंस, ये आपको नेक्स्ट स्टेज पे लेके आती है कि जहां पे यू नो व्हाट यू नो। कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, आपको पता है ये मेरी एक्सपर्टीज है, मैं रिहैब में हूं, मैं ईएमजी बहुत अच्छी कर लेता हूं, मैं रेडियोलॉजी में हूं, एमआरआई के ऊपर और स्पेशली चेस्ट एमआरआई के ऊपर मेरा बड़ा कंट्रोल है, मैं सर्जरी में हूं, न्यूरो के साइड की चीजें मेरी स्ट्रांग है। यू नो योर कॉम्पिटेंसेस। यहां पे आप समझ लीजिए आपका एफसीपीएस है ना, वो समवेयर यहां पड़ा हुआ है, इसके थोड़ा सा राइटर एज पे, यहां पे है कहीं आपका एफसीपीएस हो गया, या आपकी स्पेशलाइजेशन जो भी आप डिग्री हासिल करना चाह रहे हैं, जो इस क्वालिफिकेशन की तरफ, इट इज समवेयर ओवर हियर। बट यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। नाउ यू नो व्हाट यू नो। यहां पे प्रॉब्लम क्या आ जाती है? यहां पे प्रॉब्लम यह आ जाती है, इफ यू लूज द कमिटमेंट, यू गो बैक। You have to stay committed to your profession. You have to stay committed to your specialization, to the quest of continuous learning. डिग्री का हाथ में आ जाना is not a guarantee that you are a specialist. Why? आगे मैं बताऊंगा। आप दुनिया की नजरों में तो स्पेशलिस्ट बन गए हैं, लेकिन are you worthy of that success? You have to stay committed. If you lose the commitment, you go back. And if you stay committed, then comes the next stage, concentration and commitment के साथ unconscious competence. You know so many things that you can't even count it. और ये वो स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं गुरु की स्टेज। आपको अपनी प्रोफेशन में बहुत सारे गुरु मिलेंगे, उस गुरु के पास हो सकता है एक्सपीरियंस और इन सब कमिटमेंट की वजह से ऐसी ऐसी चीजों का जवाब भी मौजूद हो जिसको ढूंढने में आपको कई दिन लग जाए। चैट जीपीटी उसको इतना अच्छा ना बता सके, आप उससे बात करेंगे, वो कहेगा हाँ यार इसका ये इस तरह करो, इस तरह ये कर लो, क्योंकि 13 साल पहले एक दफा केस देखा था जिसमें ये था। इतना कमिटेड आदमी होगा तो गुरु बनेगा। वैसे उस गुरु से भी पूछो कि यार तुझे क्या क्या आता है, मे बी वो काउंट ना करा सके। दिस इज द पॉइंट कि जहां पे गुरु बनना शुरू होता है इंसान, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन एंड कमिटमेंट लीड्स टू दैट। यहां से यहां का सफर, 3 से 4 का सफर, ये कंटिन्यूस कमिटमेंट का सफर है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जनरली हम स्टेजेस ऑफ लर्निंग की बात करें तो आप इस तरीके से आपका लर्निंग कर्व आपका प्रोग्रेस करता है। अब आप एक सिस्टम में आ गए, सिस्टम में आ गए और आप लर्निंग के स्टेजेस तो आपको मैंने बता दी, अब आपने उस स्टेजेस का सफर करना है। अच्छा जी, हमने ज्वाइन कर लिया, हमने नया सिस्टम ज्वाइन कर लिया। अब जो ये मैं बात करने लगा हूं ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम से मुतालिक नहीं है। ये जनरली आप समझ लें कहीं भी नई जॉब से मुतालिक, नई एनवायरनमेंट से मुतालिक, नई पोस्टिंग से मुतालिक, ये कहीं भी मैटर कर सकती है। You need to do 3 things whenever you step into some new system, whether for whatever purpose. नई जॉब है, नई स्पेशलाइजेशन, आप स्पेशलाइजेशन स्टार्ट की है। बी ऑब्जर्वेंट। होता क्या है, मेरे जैसे जो कुछ बेसब्रे लोग होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, शुरू में जब किसी जगह आ जाते हैं ना, इनको ये होता है कि यार लोग मेरी, ये ईगर बीवर टाइप लोग होते हैं, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा।
ये क्या करते हैं यार, मैं आया हूं, आई एम फुल ऑफ एनर्जी, लेट्स शो द पीपल, मैं आ गया हूं और मैं ये करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो दे पुट देयर एनर्जीज इनटू सम लाइक कह लें इंप्रेशन मेकिंग मशीनरी, कि मैं एक इंप्रेशन बना के दूं, और ये जड़े करे, तेज तेज काम करे, करे वो करे। इस मौके पे जो ऊपर बैठे हुए लोग होते हैं ना, वो ये देख रहे होते हैं कि वो आपको कंटिन्यूसली आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हाउ यू आर परफॉर्मिंग। जब आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करें इस मौके के ऊपर, वहीं पे पर्क उतरने का अमल शुरू हो जाता है। कि आज ये अगर ओवर स्मार्ट बन रहा है, ही थिंक्स दैट ही और शी थिंक्स दैट दिस पर्सन इज लार्जर देन द लाइफ, फिर उसको, इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फूक। डॉक्ट्राइन ऑफ फूक क्या होती है? जिसके अंदर फूक कम है उसके अंदर फूक भरो, और जिसकी फूक ज्यादा है उसकी फूक निकालो, ताकि ये एक लेवल पे सारे ग्रो कर सके। सो बी ऑब्जर्वेंट, people should not be impressed by the activities and aggression and enthusiasm that you have, but they should be impressed by your quest to learn, आपकी ऑब्जर्वेंट, आपका ठहराव। और दूसरा इसका फायदा क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा फुदकते हैं ना, तो आप बिला वजह नजरों में आना शुरू होते हैं, फिर हर पैड़ा काम भी आपके मथे लग जाता है। फिर सर चुप करके सिस्टम में 3 से 4 महीने 5 महीने सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व करो, अपने आप को धीमा रखो। When I look at myself, I feel surprised कि आज मैं ये बात कर रहा हूँ, because I've learned so many lessons the hard way. I've been doing exactly the opposite, and that is why probably I've come to the conclusion, and I'm telling you from my own experiences. तो भाई सिंपल चुप करके ऑब्जर्व करें चीजों को, देखें क्या हो रहा है, चीजों को ऑब्जर्व करें। और इस मौके पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है, यू शुड नो अबाउट द रूल्स। ऑब्जर्वेशन के टाइम को रूल्स के बारे जानने के बारे में करें। अब रूल्स क्या है? रूल्स एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जिसको आपने फॉलो करना है। हर एनवायरनमेंट के, हर जगह के डिफरेंट रूल्स होते हैं, और रूल्स में भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स है और एक अनडिस्क्लोज या हिडन करिकुलम है आपका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गेट टू नो अबाउट द रूल्स। अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं और ज्यादा फुदक नहीं रहे हैं, तो आपके पास एडिक्वेट टाइम होगा कि आप रूल्स को जान सके। मिसाल के तौर पे आप किसी नए एनवायरनमेंट पे गए हैं, इससे पहले आप जिस सेटअप से आए थे, बॉस बड़ा ठंडा था, कभी 9 बजे आ गए, कभी 9:30 आ गए, कभी 8:30 आ गए, कभी नहीं उसने पूछा। लेकिन आप जिस जगह आए हैं वहां बायोमेट्रिक चल रहे हैं। अब आप वहां पे इस तरीके से चले कि नो अबाउट द, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं, नो अबाउट द रूल्स ऑफ दैट एरिया, कि वो आपको किस तरीके से लेके चल रहा है, यहाँ पे क्या चीज डूज एंड डोंट्स में आ जाते हैं। और डूज एंड डोंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, लेडीज एंड जेंटलमैन, it is very important to know what to do, but it is far more important to know what not to do. Because when you put your attention to the things what not to do, that is the point you save yourself from harm. Always put your attention to what not to do. क्या नहीं करना। और बेहतरीन लेसन वो है जो बंदा दूसरे की गलती से सीख ले। वो कहता है ना, गलतियां आपको सिखाती हैं, तो बेहतरीन लेसन वो है जो बंदा दूसरे की गलती से सीख ले। नो, गलती पे आ जाए, हमसे गलती ना हो जाए, ये अगर सोच इंसान के दिमाग में अपना असर दिखा लेती है ना, लर्निंग प्रोसेस रुक जाता है। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। मैं मिस्टेक्स में किसी एक स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूं, मैं किसी एक स्पेसिफिक फेटल मिस्टेक की बात नहीं कर रहा, खुदा ना खास्ता किसी की जिंदगी चली जाए, मैं आज ये आईवी लाइन, मैं ये सीवीपी लाइन डालूंगा तो सीखूंगा, मैं डाल के छोड़ूंगा, थिंग्स लाइक दैट। मतलब लाइक लर्निंग प्रोसेस को लर्निंग प्रोसेस की तरह ले। मिस्टेक्स आर बाउंड टू, जो काम करेगा गलती करे, मेरे से कभी कोई गलती ना हो, इसका सबसे आसान फॉर्मूला है, काम करना छोड़ दो, गलती नहीं होगी। आप आज अगर स्पेशलाइजेशन के रोल पे हैं, आप अपने ट्रेनिंग के रोल पे, ट्रेनिंग के रोल पे हैं, यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, बट दैट इज गोइंग टू बी द वेरी वेरी एसेंशियल कि आपका सुपरवाइजर क्या आपकी गलतियों को एक कंडेम करके आपको वहां पे पिन डाउन करता है, या उसको एक अपॉर्चुनिटी बनाता है कि आप उसको आगे लर्निंग प्रोसेस के लिए यूज करें। बिकॉज टू अर्न इज टू ह्यूमन। यहां पे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन क्वालिटी, कमिटी ऑन क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर इन अमेरिका, इसने एक बहुत बड़ी स्टडी की जिसमें इन्होंने अर्न इज ह्यूमन बिल्डिंग अ सेफर हेल्थ सिस्टम, और इसने ये बताया कि जनाब, इसने एनालाइज किया कि आपके मेडिकल सिस्टम के अंदर कितनी मिस्टेक्स होती हैं।
ये मिस्टेक्स किन किन नतीजों में कर रही है। इन्होंने इसको रिकग्नाइज किया कि यार इंसान है, गलती करेगा, आपने ह्यूमन फैक्टर ऐड किया। अगर आप याद करें मूवी जो है सली, जो टॉम हैंक्स की मूवी है, यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट के ऊपर ये मूवी बनी हुई है, जो कि हडसन रिवर में आई थी। उसके पीछे पड़ गए थे लोग, हालांकि उसने ही लैंडेड इट ऑन, ही लैंडेड एन एयरक्राफ्ट ऑन हडसन रिवर। लेकिन जाहिर है फिर जब सेफ्टी कमीशन बैठता है, सारा कुछ बैठता है, वो तो दजियों गिरते। उन्होंने कहा जी सिमुलेटर में ये सारा कुछ है, आपने तो देखा कि आपके पास लिगार्डिया का भी था और दूसरा टेटनब्रो का भी एयरपोर्ट था, तो आप इधर भी लैंड कर सकते, उधर भी कर सकते थे, आपने रिवर में उतर किया। वहां पे जब उसको उन्होंने बिल्कुल पेन किया, वो उस्ताद आदमी, तो उसने कहा आओ जी, तुम ये सिमुलेटर्स पे कर रहे हो, तुम एक चीज छोड़ रहे हो, ह्यूमन एरर। तुम एक ह्यूमन एलिमेंट को निकाल रहे हो। दिस ह्यूमन एलिमेंट हैज टू बी देयर, क्योंकि वी आर ह्यूमंस। ठीक है, तो लिहाजा अब इसने क्या बताया कि ह्यूमन एरर के साथ क्या हुआ। Actually, it is the system that needs to accommodate human error, because humans are bound to make errors. To err is to it asserts that the problem is not the bad people in the healthcare, it is the good people working in a bad system that needs to be made safer. और फिर इसी तरह फर्दर जो स्टडीज थी, इसने ये बताया जनाब के उसमें एक अमेरिकन, उसमें क्या नाम है, अमेरिकन सेनेट में डॉक्टर पॉल है, जो कि इनके बड़े इसी तरह सेफ्टी कमीशन का हेड था। उसने ये बताया कि जनाब अगर हम ह्यूमन एरर्स के एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट देखें, इट इज लाइक 2747 कोलाइडिंग एवरी डे। इतना ह्यूमन एरर से डेथ्स होती है सिस्टम के अंदर, 2747 कोलाइडिंग एवरी डे। इंग्लैंड में नेशनल कमीशन ने इसके ऊपर एरर्स के ऊपर देखा, नेशनल ऑडिट ऑफिस ने देखा, 10% ऑफ डेथ्स आर एट्रीब्यूटेड टू ह्यूमन एरर एंड सेम फिगर वर 14% फॉर फ्रांस। हमारे सिस्टम में कितना है, एक तो डेटा ही नहीं है, डेटा ही नहीं है तो है ही नहीं। तो ये तो बड़ी आसान सी चीज है, लेकिन डेटा ही अवेलेबल नहीं है। सो एरर्स आर बाउंड टू हैपन, जो काम करेगा उससे गलती होगी, बट हाउ टू टैकल दैट थिंग, दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाई डू यू मेक मिस्टेक्स? यू मेक मिस्टेक्स व्हेन यू आर हर्ट। नो, व्हाट इज बीइंग हर्ट? क्या चोट लगी होती है? हर्ट इज एन एक्रोनिम एंड इट स्टैंड्स फॉर व्हेन यू आर इन हरी, व्हेन यू आर अपसेट, when you think it's a routine, and when you're tired. So ladies and gentlemen, if you're about to do into something, if you're about to start something, you should need to know कि यार, am I hurt, am I in a hurry, I'm in upset, I'm in a routine, I'm taking it as a routine, complacency है, और am I tired? आप इस hurt को निकाल दें कि आपकी probability of committing mistakes is going to fall like a Raphael. So failures के ऊपर अब थोड़ी सी बात करना। अब वो असल में ये वो साउंड ऑफ हुई है, वरना अदरवाइज मुझे आदत तो जरा इंटरैक्टिव सेशंस की है, बट चले नॉनदलेस। फेलियर्स, डू यू थिंक फेलियर्स आर इंपॉर्टेंट इन लाइफ? Excuse me, sir. Just to जी interrupt you here. If you want जी people to जी। participate, we can ask them to raise their hands and they can ask a question to make it an interactive session. अच्छा, उसमें फिर उमर मुझे आपकी हेल्प ये चाहिए होगी, क्योंकि मेरी फोकस तो सिर्फ स्लाइड्स के ऊपर है, और मैं सिर्फ साइड पे, मैं सारे वो नहीं देख रहा, जो हैंड रेज कर रहा हूँ, आप किसी भी मौके पे मुझे इंटरप्ट करके आप बता सकते हैं कि जी ये कुछ कहना चाह रहे हैं, आप मेरे साथ को होस्ट कर लें इस चीज को। जी बिल्कुल ठीक है सर। अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हैं अभी पूछना चाह रहे हैं तो वो रेज हैंड कर सकते हैं, अदरवाइज You वो can interrupt हमें। me, to my dear audience, you can interrupt me at any point of time. आप कभी भी मुझे बीच में रोक सकते हैं, कभी भी फ्लो को कर सकते हैं। Your ideas and your questions are far more important than whatever I am saying. So, खैर, coming back to this thing कि जी failures, how important failures are. Failures are very, very important. And embracing the failure is far more important than owning a success. Because when you embrace a failure, अच्छा failure है क्या? Failure is actually not an opposite of success. Success का opposite failure नहीं है। Failure is something कि जिसमें आपको अपना नतीजा जो आ रहा है, आपको ग्रोथ का मौका मिल रहा है, आपको ग्रोथ का मौका मिल रहा है, जिसमें आप आगे फर्दर उसको इनहेंस कर सकते हैं, उसको इंप्रूव कर सकते हैं। आई एम रियली सॉरी, मैं चैट का आइकॉन तो देख रहा हूं, लेकिन मैं इस वक्त उमर, आप इसमें मुझे बता दीजिए अगर चैट में ऐसा कोई कमेंट या ऐसी कोई चीज हो, क्योंकि मैं फिर वो अपनी स्क्रीन से फिर मैं हट जाऊंगा, शेयर स्क्रीन की वजह से वो चीज इफेक्ट हो जाए। राइट सर, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ। जी, फेलियर्स का सबसे बड़ी पहली चीज ये है, सबसे पहला फायदा क्या है फेलियर्स का? फेलियर आपको फैक्ट्स बताता है,
आपको रियलिटी चेक मिलता है, आपको ये पता लग जाता है व्हाट डिडंट वर्क, आपको ये अंदाजा हो जाता है कि मैं जिस चीज को जैसे समझ रहा था, इट डिडंट टर्न आउट टू बी लाइक दैट. So there needs to be some modification. I need to keep the things straight. I need to do the things in a better way. So failure आपको एक तो पहली चीज ये बताता है. दूसरा, फेलियर आपके अंदर रेजिलियंस पैदा करता है. Now what is resilience? Resilience is ability to adapt and recover and move forward. This is called resilience. रेजिलियंस आपको ये बताता है कि अब मैं गिरा, अब मैंने उठना है और मैंने आगे जाना है. दैट इज रेजिलियंस. फेलियर के साथ आपके अंदर रेजिलियंस क्या आती है, वरना तो वॉक इन अ पार्क तो कोई भी कर सकता है. फिर उसके बाद फेलियर आपके अंदर ह्यूमिलिटी लेके आता है. नाउ ह्यूमिलिटी इज, इट कीप्स यू ग्राउंडेड, इट इट ओपन्स द डोर फॉर कोलैबोरेशन. नहीं यार, इट डिडंट वर्क, मैं इसको नहीं कर पाया, अब मैंने इसको क्या करना है, आगे लेके चलना है. ओके, अब मैं इससे भी हेल्प लूं, इससे भी हेल्प लूं, आप कोलैबोरेशन के उसके ऊपर चलते हैं. एंड फेलियर कीप्स यू फोकस्ड, आपका फोकस शार्पन होता है, आप ज्यादा तरीके से उसके ऊपर कर सकते हैं. यहां पे मैं एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा. एफसीपीएस का एग्जाम था, लंबी स्टोरी है लेकिन इसको मैं छोटा सा करके बताता हूँ. एफसीपीएस की तैयारी कर रहा था और मैंने जनाब आखिरी साल में 8 महीने रखे थे मैंने कि इसमें मैं नोट्स इकट्ठे करूंगा, ये करूंगा. मुझे एक प्रेसी मिली जिसके अंदर तकरीबन 20 सवाल थे की के साथ, कि सीनियर्स के नोट्स में से मिले. मैंने क्या किया कि पिछले 5 साल के एफसीपीएस के पेपर्स को तैयार किया, लिख लिख कर तैयार किया, बड़ी जनाब मेहनत की. हार्ड एरिया में पोस्टेड था, खुला टाइम था, सिर्फ बैठ के पढ़ाई कर रहा था. लिख लिख के तैयार किया, उस प्रेसी को भी तैयार किया. जब पेपर आया तो थ्योरी में 10 सवाल पहले पेपर में थे और थ्योरी के दूसरे पेपर में 10 सवाल थे. उन 20 में से 12 सवाल उस थ्योरी उस प्रेसी में से आए हुए थे. 5 सवाल जो थे वो पिछले 5 साल के पेपर्स में आए थे, और 3 सवाल नए थे जो मुझे आते थे. कैन यू इमेजिन हाउ लकी आई फेल्ट एट दैट टाइम. मैं पेपर के दौरान टॉफियां खा रहा हूँ, लोगों को टेंशन में देख रहा हूँ. मैंने इतनी लिख लिख के तैयारी की थी कि इवन मुझे तो लिखने की भी जरूरत शायद नहीं महसूस हो रही थी, लेकिन ऑब्वियसली आई पुट इट डाउन. बाहर निकल के मैंने अपने कोलीग से कहा, दोस्त से कहा, मैंने कहा मुझे डर लग रहा है मैं कहीं फर्स्ट ना आ जाऊं. मेरा वो एग्जाम फेल हो गया. मुझे आज तक नहीं पता कि मेरा एग्जाम क्यों फेल हुआ. मैंने पेपर रीचेक कराया, सीपीएसपी ने कहा भाईजान स्कूल से बैठो, तुम फेल हो. और बिल्कुल मार्जिन पे फेल हुआ, 58%, 59%. मुझे आज तक नहीं पता कि मेरा वो क्यों फेल हुआ. और मुझे सबसे बड़ी टेंशन ये हो गई कि यार कल को यही सवाल दोबारा आ गए तो मैं लिखूंगा क्या, मुझे तो यही जवाब आते हैं, जवाब ही यही है. बट आई गॉट फेल्ड. आज जब मैंने एक्चुअली जब मैं उसके ऊपर थोड़ा सा रिकैप करता हूं, उसको उसको मैं रिफ्लेक्ट बैक करता हूं, दैट फेलियर एक्चुअली पुट मी बैक टू द ग्राउंड. प्रोबब्ली जो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में थिन लाइन है ना, आई हैड क्रॉस दैट लाइन. प्रोबब्ली इट पुट मी बैक इनटू माय सेंसेस. That failure was essential. No matter how painful it was, still feel the pinch. फर्स्ट टाइम में नहीं हो सका बहरहाल, लेकिन दैट फेलियर वाज इंपॉर्टेंट. और फाइनली ये फेलियर आपको ग्रोथ की तरफ लेके चलता है. बिकॉज जब आप वॉक इन अ पार्क के साथ, ओ इट्स अचीवेबल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट व्हेन यू एक्चुअली स्ट्राइव फॉर इट, देन दैट स्ट्राइविंग एक्चुअली टेक्स यू टू द नेक्स्ट लेवल. यहां पे एक छोटी सी मजेदार स्टोरी सुनाऊंगा, फेलियर को देखने का तरीका ये कितना इंपॉर्टेंट है. वर्ल्ड वॉर 2 में बॉम्बर्स होते थे इस तरह के, जो जाते थे और दुश्मन के ऊपर बॉम्बिंग करके आते थे, पर आप देख सकते हैं कि इट्स अ स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट. इट वाज लोडेड विद बॉम्ब्स, और इसकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए जैसे यहां गन्स लगी हुई है, नीचे एक टर्रेट बना हुआ है, पीछे एक टर्रेट बना हुआ है यहाँ पे. लेकिन दे वर स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट एंड दे वर यूज टू बी हिट बाय एनिमी जो फाइटर एयरक्राफ्ट है. हत्ता कि इनका इनका सक्सेस रेट जो था वापस जो था वो सिर्फ 50% था. आधे जाते, 50 बॉम्बर जाते थे, 25 वापस आते थे, क्योंकि स्लो मूविंग थे. एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हिट कर जाती थी, एनिमी के जो फाइटर्स आते थे वो हिट कर जाते थे. सो एयरफोर्स ने कहा कि यार हम तो अपना बहुत ज्यादा ये लॉस कर जाते हैं, सो इसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि इसको हम कैसे इनके कुछ एरियाज को जो हम मजबूत करें कि ये जहाज कम से कम अगर हिट भी हो तो ये वापस आए. उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एनालाइज किया कि ये जहाज में इन इन पोर्शंस के ऊपर गोलियां लगती हैं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे रेड निशान नजर आ रहे हैं, इनको अगर हम थोड़ा सा प्लेटिंग इनकी बड़ी कर दें, इनको जरा थिक कर दें, तो जहाज हिट नहीं होगा या जहाज का नुकसान नहीं होगा, और जहाज जो है वो क्रैश नहीं हुआ करेंगे. ठीक है जी, मेक सेंस. ये अब्राहम वॉल्ड वाज अ हंगेरियन मैथमेटिशियन, और ये ज्यू था, और ये वहां से जनाब जिस वक्त
ऑस्ट्रिया में होता था, लेकिन वहां पे जब प्रॉब्लम हुई तो ये भाग के फिर अमेरिका आ गया। अब यहाँ पे खैर अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी में था ये, और ये मैथमेटिशियन था। ही वॉज पार्ट ऑफ द थिंक टैंक, जो कि वर्ल्ड वॉर्स के ऊपर ये लोग, मैथमेटिशियन का भी काम होता था कि जिसपे कर रहा था। इसको जब हिस्सा बनाया और इसने इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया, उसने कहा यू पीपल आर टेकिंग इट रॉन्ग। आप ये बुलेट रिडन एरियाज देख रहे हैं उन जहाजों के विच सेफली केम बैक, नो मैटर हाउ टार्निश, वापस आ गए। आप उन जहाजों की बात करो जो क्रैश कर गए। अगर इन जहाजों पे गोलियां लगती हैं तो जहाज कैन स्टिल लैंड बैक। इसका मतलब है कि ये जगह इतनी वाइटल नहीं है। वाइटल जगह कौन सी है? प्रोपेलर, और ये इसका पीछे का प्रोपेलर, और इसके ये मेन फ्यूजलाज और इंजन। उसने इनको कहा आप इनको अगर स्ट्रेंथन करना है, इन एरियाज को स्ट्रेंथन करो। और इस चीज को फिर बाद में इसको वो सर्वाइवल बायस का नाम दिया गया कि मैथमेटिशियन में स्टडीज में आप गलत स्टडी कर रहे हैं। बताने का मकसद क्या है स्टोरी का? फेलियर को इस एंगल पे ना देखो जो बिल्कुल ऑब्वियस नजर आ रहा है, इसको कई एंगल से देखो। जब आप फेलियर को डिफरेंट एंगल से देखोगे तो फिर ऐसे नतीजे आपके सामने आएंगे, जैसा कि अब्राहम वॉल्ड ने इनके सामने किया। और फिर जब इन एरियाज को स्ट्रेंथन किया गया, इनका 50% से सर्वाइवल रेट बढ़ के 85% तक चला गया। सो यू कैन सी के एक थॉट प्रोसेस हाउ बिग अ डिफरेंस इट कैन ब्रिंग। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, अच्छा स्पेशलिस्ट हमने बनना है, हमने गलतियों से भी निकलना है। यहां पे मैं ऑडियंस से कहना चाहूंगा कि जी प्लीज, आई वुड लाइक टू योर इनपुट। व्हाट इज अ गुड स्पेशलिस्ट? आपके नजदीक अच्छा स्पेशलिस्ट कौन है? जी प्लीज। You can use the chat function to answer. A good specialist is one who is, first of all, a good human being. How do you define that? गुड ह्यूमन बीइंग, लाइक मैं भी अच्छा इंसान हूं, हो सकता है मैं अच्छा स्पेशलिस्ट हूं। एनीबडी एल्स? अच्छा चले, मैं इसको दूसरे तरीके से लेके चलता हूं। आप किसी जगह किसी हॉस्पिटल में गए हैं अपने किसी अजीज को चेक कराने के लिए, आप वहां किसी को नहीं जानते। आपके सामने तीन दरवाजे हैं। पहला दरवाजा है प्रोफेसर साहब, डिग्री 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 डिग्री। दूसरा दरवाजा असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर, डिग्री डिग्री डिग्री। तीसरा है असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री डिग्री। आप किसके पास जाना पसंद करेंगे? जी एनीबडी? जनरली स्पीकिंग लोग कहते हैं जनाब हम उसके पास जा रहे हैं जी, क्या नाम है, Uh, who knows when Sir to treat and Haris, when not to. Okay, the one who's empathetic. Fine. Okay. सो जैसे मैंने आपको बताया तीन मिसालें। आप प्रोफेसर के पास जाना पसंद करेंगे, आप एसोसिएट के पास जाना पड़ेंगे, या आप असिस्टेंट के पास जाना पसंद करेंगे? एक्सपीरियंस के पास जाना पसंद करेंगे या रिलेटिवली लेस एक्सपीरियंस के पास जाना पसंद करेंगे? प्रोफेसर के पास। ओके फाइन। जल्दी क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस है, उसको पता है ये। while you're moving towards that door you come across an acquaintance who happens to work there, और वो आपको कहता है कि यार प्रोफेसर साहब के पास जा रहे हो, बहुत ही रूड आदमी है, would you still like to go there? इट्स अ पर्सनल चॉइस। नाउ मैंने जब अपनी वर्कशॉप में जब ये सवाल किया तो ये इसके अंदर एक पर्सनल चॉइस आ जाती है कि जी लोग आने जाना चाहें या ना जाना चाहें, ये उनकी पर्सनल चॉइस आ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी हम तो फिर भी एक्सपीरियंस के पास जाएंगे, कुछ कहेंगे नहीं मैं बदतमीज आदमी के पास नहीं जाऊंगा। इट्स अ पर्सनल चॉइस, बट जनरली स्पीकिंग पीपल केम अप विद आई वुड नॉट लाइक टू गो टू द रूड पर्सन। यहां पे इसका मतलब है कि एटीट्यूड इज द डिफाइनिंग थिंग, जो कि उसको उसकी सारी डिग्रीज उसकी सारी क्वालिफिकेशन मल्टीप्लाई बाय जीरो कर रहा है। So attitude is something that is far more important than the qualification. And what is this attitude? आपके एटीट्यूड में 70% रोल आपकी 30% रोल आपकी क्वालिफिकेशन का है, रेस्ट 70% क्या है? रिस्पॉन्स, ट्रांसफरेंस, एम्पैथी, आईक्यू, ईक्यू, ये सारी चीजें आपकी ये एम्पैथी में कहलाती है, ये आपकी चीजें आपकी पर्सनैलिटी में हिस्सा है। सो सारी जिंदगी आप स्पेशलिस्ट बनने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, वो क्या कर रही है? वो आपको सिर्फ 30% दे रही है। वर्क ऑन द 70%, दैट इज अ फार बिगर एरिया। और इसी बात को
थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा, थियोडोर रूजवेल्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसका चेहरा काव हुआ है माउंट रशमोर के ऊपर, उसने कहा नोबडी केयर्स हाउ मच यू नो अनलेस दे नो हाउ मच यू केयर। प्रॉब्ली उसने जब ये बात की तो शायद डॉक्टर्स के लिए नहीं कही, बट इसका इतलाक जितना डॉक्टर्स के ऊपर होता है किसी और के ऊपर नहीं होता। यहां पे मैं एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाना चाहूंगा पैच एडम्स का। ये मूवी अगर आपने नहीं देखी तो ये जरूर देखिए, और मेरा बस चले तो मैं इसको ना करिकुलम का हिस्सा बनाऊं। पैच एडम्स जो है, ये राइट साइड पे जो इमेज आ रहा है ये एक्चुअली है, और रॉबिन विलियम्स ने इसकी मूवी बनाई। मुन्ना भाई एमबीबीएस तो देखी होगी आप सबने। ये मुन्ना भाई एमबीबीएस इसकी कॉपी है, अच्छी कॉपी बनाई है, लेकिन वो स्टिल बेसिक आइडिया इस मूवी का था। इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, डॉक्टर पैच एडम्स, दिस गाय। ये एक छोटा सा क्लिप मैं इनका आपको दिखाना चाहूंगा। अल्लाह करे ये साउंड मैंने इसकी चेक नहीं की कि उसके ऊपर पूरी तरीके से चल जाए। जो कि इसने डॉक्टर पैच एडम जो था ये अभी थर्ड ईयर में था, तो ये अपने प्रोफेसर वगैरह के जो इन ह्यूमन किस्म के उनके जो कॉन्सेप्ट्स होते थे उनको बड़ा चैलेंज करता था, जिसकी वजह से अक्सर उसे प्रोफेसर्स की मुखालफत का सामना करना पड़ता था। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक रैंच ली, एक जगह ली, जहां पे उसने जनाब क्या किया कि लोग आते थे, बैठते थे, बातें करते थे, किसी को खिला पिला दिया, कुछ कर दिया, सेहतयाब होके चले जाते थे। तो उसके प्रोफेसर ने मुकदमा कर दिया कि ये तो मेडिकल स्टूडेंट है, इसके पास तो लाइसेंस नहीं है और ये क्लिनिक रन कर रहा है। उस मुकदमे की छोटी सी कार्रवाई आपको मैं दिखाना चाहूंगा। There's no sound, sir. साउंड नहीं आ रही, सॉरी, I cannot hear that. आई स्किप दैट देन। वो आई एम रियली सॉरी कि वो कुड नॉट वर्क ऑन इट, लेकिन इसको हम थोड़ा सा करते हैं। ओ जी, कमिंग टुवर्ड्स द फाइनल पार्ट ऑफ द टॉक। अब आप एज अ टीम काम कर रहे हैं, आप एक एज अ टीम में काम कर रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। नाउ देयर आर जनरली 4 पर्सनालिटी टाइप्स जो कि एक टीम के तौर पे काम करती है, ठीक है जी। और टीम के बारे में कहा जाता है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, टीम। सो अगर हम प्रोफाइल इसकी पर्सनालिटी टाइप्स की बात करें तो आपको ना 4 तरह के लोग मोटे मोटे तौर पे मिलेंगे। सबसे पहले मिलेंगे आपको जनाब जिन्हें कहा जाता है अल्ट्रा ड्राइवर। इन्होंने हर हाल में फर्स्ट आना है, ये बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने फर्स्ट आना है। ये जनाब दिन रात मेहनत करते हैं, बड़े होते हैं, इनको रिकग्निशन और लाइमलाइट भी बहुत पसंद होती है, आड़ियां जाड़ियां दिखाएंगे जबरदस्त, और साथ वालों को कभी कभार लुक्स भी करा देंगे कि हम सब बन के दिखाओ। फाइन, होते हैं अच्छे, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ करते हैं, लायक भी होंगे, मेहनत भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, प्रॉब्ली डिजर्व भी करते हैं जो अटेंशन इन्हें मिल रही होती है, लेकिन उस पर बहुत शादा और फरहा रहते हैं। अल्ट्रा ड्राइवर आपके डिपार्टमेंट में एक आ गया, ओके आ गया, इनके साथ कैसे गुजारा किया गया? देखो अल्ट्रा ड्राइवर जो है ना, इसको आपने सिर्फ ये एहसास दिलाना है कि भाई तू है फरारी, मैं एफएक्स, तू है फरारी, तू बहुत अच्छा, तू डिजर्व करता, तू जीत। इनकी ईगो को थोड़ा सा सेटिस्फाई देने के करने के लिए आपको अपनी ईगो की कुर्बानी देनी पड़ती है। अदरवाइज अगर आप इनको खुला छोड़ दें, दे विल ईट यू अलाइव, बट यू हैव टू पुट अ बार समवेयर समटाइम। बट जनरली स्पीकिंग इनके साथ चौमुखी लड़ाई की जरूरत नहीं है, इनको आप जरा थोड़ा सा सुकून के साथ ही डील करें। अच्छा यार चल ठीक है, अच्छा चल जाने दे, ताकि इनको यह एहसास हो कि आप इनके साथ साथ चल तो रहे हैं, लेकिन इनके आप रुकावट नहीं है, आप इनके लिए जो है ना वो नहीं है, क्या नाम है, आप इनके रास्ते में हर्डल नहीं है, वरना तो यार कुचल के ऊपर से जाएंगे। एक तो पर्सनैलिटी टाइप के, दूसरे होते हैं हमारे पास सीक्रेट एजेंट्स, चुप चुपीते अपना काम कर रहे होते हैं। दे डोंट लाइक द लाइट, फर्स्ट इन्होंने भी आना होता है, दे डोंट लाइक द लाइमलाइट, चुप करके अपना काम कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे क्या है यार, सनऑप्सिस जमा कराना है, अच्छा सनऑप्सिस हाँ जमा कराना है यार, सनऑप्सिस जमा कराने की लास्ट डेट वो अभी तो 3 हफ्ते है ना, हाँ है, अच्छा सनऑप्सिस, वो यार सनऑप्सिस जमा करा, यार तूने जमा करा दिया, मैंने 3 हफ्ते पहले जमा करा दिया, वो यार तूने बताया क्यों नहीं, क्या बताना था, मैंने अनाउंस करना था, तुम्हें पता नहीं था। सीक्रेटली काम करते हो, इंट्रोवर्ट होते हो, दे डोंट ओपन अप मच। फर्स्ट आना होता है, ये वो मेडिकल कॉलेज में नहीं होता तो हॉस्टल्स में तौलिया नीचे दरवाजे के नीचे रखे ताकि लाइट बाहर ना जाए, लोगों को पता ना लगे कि मैं पढ़ रहा हूं, ये उस किस्म के लोग होते हैं। अच्छा, ये इतने हार्मफुल एज पर से नहीं होते, लेकिन अब जाहिर है आपके साथ अगर काम कर रहे हैं तो आपको हेल्प और कोलैबोरेशन तो चाहिए होती है। इनके लिए हेल्प और कोलैबोरेशन हासिल करने के लिए आपने क्या करना होता है, यू नीड टू आस्क देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन थिंग्स, इनसे पूछते रहे, अच्छा भाई ये क्या है, ये क्या है,
इंट्रोवर्ट होते हैं, जरा चुप करके बैठे रहते हैं, कभी पूछ लिया, कभी बात कर लिया, कोई दोस्ताना। अच्छा, रखेंगे आपको डिस्टेंस पे, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि आपको एकदम या अपने उसमें हल्का बाब में शामिल कर ले। दे आर वेरी सेलेक्टिव अबाउट द पीपल अराउंड देम। द पॉइंट इज, कोलीग्स आपके दोस्त नहीं होते, रिमेंबर दिस थिंग। दोस्त आपके वो हैं जो बचपन से कुछ 4-5, जिंदगी में 3-4 होते हैं, बस यही होते हैं। दोस्त और कोलीग में फर्क होता है। कोलीग्स में अच्छे कोलीग, बुरे कोलीग होते हैं, लेकिन कोलीग को कोलीग की तरह लो। दोस्त मोस्टली आपके नहीं होते, ठीक है। हाँ, आपके विद टाइम किसी का डेवलप हो जाए, टाइम टेस्टेड हो, जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई दोस्ती, कोई ताल्लुक 7 साल तक रहे तो देन इट इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट अ लाइफ टाइम, ठीक है। सो यहां पे आपने दोस्तियां नहीं बनानी, अच्छे कोलीग का रिश्ता रखना है, दोस्तियां नहीं बनाने की कोशिश कर। Having said that, coming back to this, तीसरी पर्सनैलिटी टाइप, ईगर बीवर। शोर हंगामा, शुगल मेला, रश है, वो जनाब भाग रहे, दौड़ रहे, इधर उधर लोगों से मिल रहे, ओए जनाब ये पार्टी ला रहे हो, उधर से आज नान छोले लेके आते हैं, आज रेल स्टेशन पे जाके अंडा पराठा खाएंगे। ये इट्स अ ट्रीट टू हैव अ ईगर बीवर इन योर टीम। ये एक लाइफ होते हैं, फुल ऑफ लाइफ पीपल होते हैं, इनके साथ रौनक होती है, इनके साथ मजा आता है। बट इनका एक नुकसान होता है, इनका एक ड्रॉबैक है, इनकी ब्रेकें नहीं होती, इनको ये नहीं पता होता कहाँ रोकना है। ये ऐसी बात भी बोल जाएंगे ऐसी जगह पे जहां पे बोलने की जरूरत नहीं होगी। और ईगर बीवर के साथ मसला है, आप इनकी ब्रेक लगाने की कोशिश करें ना, नाराज हो जाते हैं। और दूसरा मसला है, अगर इनको अप्रिसिएशन ना मिले तो ये बिल्कुल बर्न आउट कर जाते हैं। सो ईगर बीवर को टैकल करना बड़ा जरूरी चीज होती है। आपको यकीनन इन पर्सनालिटी टाइप्स के साथ बहुत सारे अपने इर्द गिर्द के लोग आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि मेजोरिटी लोग इन्हीं कैटेगरीज में फॉल कर रहे हैं। और फिर उसके बाद एक हमारी पर्सनैलिटी टाइप ये होती है, दुनिया काम कर रही है, ठंड परेड सुकून.com, ठंड परेड से बैठे हुए होते हैं, इनको कोई परवाह नहीं होती। और सिस्टम इनको कुछ कहता भी नहीं है। गुस्सा तो इस बात के ऊपर आता है, यार जिस दिन मैं लेट हो जाऊं, 15 मिनट लेट हो जाऊं, बॉस से डांट पड़ जाती है, वो 10:30 बजे आ रहा होता है, उसको कुछ नहीं को कहता। इनको समहाउ पता होता है कि ये कैसे इन्होंने सिस्टम को डॉज करना होता है। इनको अच्छी रिप्यूट नहीं मिल रही होती, बट दे डोंट केयर, उनको नहीं चाहिए। और मसला क्या होता है, इनको जो क्रिटिसाइज करेगा ना, वो तो क्रिटिसिज्म इज देयर होम स्टेशन, वो तो उनका होम ग्राउंड है। उनको क्या मसला है, क्रिटिसाइज कर रहे कर लो। अब सिस्टम में आप इन लोगों के साथ अगर काम कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बात की थी कि सिस्टम में आपके पीयर्स हैं, हाउ टू लिव विद दीज पीपल, हाउ टू मेक देम वर्क इन द सिस्टम। इनको क्रिटिसाइज ना कीजिएगा, क्रिटिसिज्म इनका होम ग्राउंड है, वो उनको वैसे ही आदत है, वो उनका फ्यूल है, क्रिटिसिज्म करो, करते रहो। यहां लैक कर रहे होते एप्रिसिएशन। इतना से भी काम करें ना, अप्रिशिएट कर दो, मेक देम फील वर्थ समथिंग। इन्हें वर्थलेस रह रह के ना, वर्थलेस रहने का चस्का पड़ चुका होता है। सो मेक देम फील वर्थ समथिंग। उसमें उम्मीद है कुछ बेहतरी की गुंजाइश है, वरना बड़े ढीठ लोग भी होते हैं उसमें। सो लेडीज जेंटलमैन, कमिंग टुवर्ड्स देम, मेरे उस्ताद ने ये मुझे लिख के दिया और मैंने उन्हीं के हैंडराइटिंग में इसको अपनी प्रेजेंटेशंस का हिस्सा बनाया कि अंदाजे बेया बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। ठीक है जी। सो हाउ यू से द थिंग्स इज एक्चुअली फार मोर इंपॉर्टेंट। चेक योर लैंग्वेज, चेक द मैनर इन विच यू से द थिंग्स, बिकॉज इन द वर्क प्लेस आपकी कोई कैजुअल की हुई बात कहीं भी प्रॉब्लम कर सकती। अपनी वर्क प्लेस में जो, अच्छा एक मैं खुशफहमी आपको बता दूं, बॉस के खिलाफ अगर आप कोई बात कर रहे हैं ना, भाई 30 साल का तजुर्बा हो रहा है, 25-30 साल का तजुर्बा हो रहा है, बॉस तक वो बात पहुंचती, किसी खुशफहमी में मत रहा। तो लिहाजा बेहतर है ये बॉस की बातें अपने किसी मोहल्ले के दोस्त को बता दो, वो ठीक है, कॉलीग्स के साथ ये चीजें शेयर नहीं करनी। सो आई वुड लाइक टू फर्दर थोड़ा सा मैं इसको लेके चलूंगा। एक चीज याद रखें, आप सब एक पूल का हिस्सा होते हैं व्हेन यू आर वर्किंग इन अ डिपार्टमेंट, और ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप साफ सुथरे हैं और दूसरा जो है वो साफ सुथरा नहीं। डोंट गो फॉर द फिंगर पॉइंटिंग टुवर्ड्स पीपल, डोंट गो फॉर दैट, बिकॉज ये मिस्टेक्स कल को आपसे भी हो सकती है। और कार्मा, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल करना चाह रहा, कार्मा हिट बैक्स, कार्मा हिट बैक्स। ठीक है जी। सो लिहाजा बी वेरी केयरफुल, एंड लास्टली प्लीज स्प्रेड एप्रिसिएशन अराउंड यू। जादू की जप्फी का जो कॉन्सेप्ट था ना उसमें, मुन्ना भाई एमबीबीएस में, ये जादू की जप्फियां बहुत जरूरी है। मैं इसको वर्चुअल वर्ल्ड में बात कर रहा हूँ।
खुदा रहा इसको, तो आप इसको एक्चुअल वर्ड बना लीजिएगा। जादू की जबियों से मुराद एप्रिसिएशन ऑफ द पीपल अराउंड यू। Praise the people around you. Praise the janitor around you. Praise the peon. Praise the boy that brings you tea. Praise him. Give him sometimes कोई छोटे से 100 रुपए, आज यार रख जा, तू आज मेरी तरफ से चाय पी ले. That is how you're going to win friends and influence people. Even if you don't make the friends, you're going to have a positive influence on the people and to yourself as well. So, ladies and gentlemen, thank you so very much for your talk, for bearing me for this time or this long. और I hope के कुछ बातें आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आएंगी, एंड आई वुड लाइक के आप कि अगर कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, कोई एक्सपीरियंसेस आप शेयर करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम. Sir, thank you so much for this great presentation. Even I've learned a lot, despite the fact that I'm just, just 10 years younger to you. Even then, I've learned a lot. 10 ओके. नहीं, it was brilliant, sir. It was very nice. और इसमें बहुत सी जो पर्सनालिटी टाइप्स आपने एक्सप्लेन किए हैं, बिल्कुल ऐसी होती हैं. मैं तो ये सोचता था इनमें से मैं कौन हूँ. तो एक कॉम्बिनेशन ही था वैसे 3-4 चीजों का. जी बिल्कुल ऐसे ही है. So, if you have any questions, we can, the house is open for questions. You can ask direct questions live on the screen, on the camera, or mic, or you can type your questions if you have any questions. अच्छा सर, ये एक मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ये जो आपने आखिर में बताया, जो लास्ट कैटेगरी थी, जो लेड बैक लोग हैं, जो इनको फर्क नहीं पड़ता. मैंने मैंने एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर लिया, तो मैंने देखा कि जब उनकी अप्रिसिएशन की गई तो वो बहुत बड़े ज़बरदस्त लोग निकले. उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उनकी जो आउटपुट थी बहुत ग्रेटली इन्हांस हो गई. और लेकिन द मोमेंट दे गो टू अनदर सेटअप, बिकॉज रेपुटेशन ट्रेवल्स फास्टर देन द पर्सन, तो वो फिर वापस उसी उसी सिचुएशन में आ जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? मेरा एक्सपीरियंस इस चीज में ये बताता है कि एक्चुअली ना, ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, ये किसी जमाने में ईगर बीवर रहे होते हैं. इन्होंने बड़ा ईगरली काम किया होता है, बड़े सब एक्टिव रहे होते हैं, लेकिन फॉर वट एवर रीजन, अप्रिसिएशन ना होने की वजह से, सक्सेस अचीव ना होने की वजह से, डिजायर रिजल्ट ना होने की वजह से, दे टेंड टू कन्वर्ट इनटू द लेजी पर्सन, जो कि आपने जिनकी बात की. लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जब उनको अप्रिसिएशन मिली, ईगर बीवर का फ्यूल ही अप्रिसिएशन है. जब कभी वो अप्रिसिएशन उनका फ्यूल मिला, दे स्टार्ट टर्निंग बैक टू व्हाट दे वर. और जब कभी वो फ्यूल खत्म होना शुरू हुआ, दे ट्रांसफॉर्म बैक इनटू देयर ओन सेल्फ. तो ये रास्ता चलता रहता है. इसीलिए आप वर्क प्लेस में, मैं तो ये कहूंगा, दुआ करें अल्लाह आपको अच्छे कॉलीग्स दे. ये आपको अच्छी जॉब मिले ना मिले, आपको अच्छे कॉलीग्स जरूर दे. ये बेशक. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज हार्ड एरिया डज नॉट किल, हार्ड एनवायरमेंट किल. ट्रू. दिस इज व्हाट आई हैव टू से. वो भी है ना सर, पीपल डू नॉट लीव बैड जॉब, दे लीव बैड एनवायरनमेंट्स एंड बैड बॉसेस. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो ये है जनाब, बहरहाल. तो आई एम ग्रेटफुल टू, अगर इफ देयर आर नो मोर क्वेश्चंस, तो सब मैं उमर आपका और मुबाहिस का, इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म. और वंस अगेन, चूंकि ये इंटरेक्टिव इतना नहीं था, तो मेरे अंदर वो मुझे चूंकि वर्कशॉप्स वगैरह की आदत है, तो वो रिस्पांस डायरेक्ट आता रहता है. ऑनलाइन में जरा थोड़ा सा ही होता है, लेकिन नॉनदलेस यू वो मोस्ट वेलकम मिजान. तो उसमें ये होता है कि वो वेबिनार में ये अनफॉर्चुनेटली एक छोटी सी एक चीज होती है कि आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन का जरा एलिमेंट थोड़ा कम होगा, तो वो जो ऑडियंस का रिस्पांस होता है ना, वो मेरा फ्यूल होता है. तो गो कि मुझे फ्यूल कम मिला, लेकिन रिजर्व में इतना पड़ा हुआ था कि मैं चलता आ रहा. तो थैंक यू सो मच फॉर द प्रेजेंटेशन, फॉर चलिए. योर टाइम. आपको हमने बहुत पिछले कुछ दिनों में काफी हमने तंग भी किया, और आपको हम नहीं नहीं, जो है इट्स ऑलवेज पीछे अ आपने प्लेजर पड़े नोइंग, बीइंग इन टच विद यू. रहे. और आपने इस अपना जो टाइम है वो निकाला हमारे लिए. दैट इज, इट्स एन ऑनर फॉर अस. वो बाहिस की टीम में से इकरा असलम हमारे साथ आज मौजूद हैं, बट शी डजंट नो यू मच, सो आई न्यू यू, सो आई टुक दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस यू. और इसी बहाने आपसे हम आपको देख भी लेंगे सर, फेस टू फेस. पुरनूर चेहरा आपका जो थैंक यू होने वेरी वाला मच. है मजीद, तो उसको हम एक दफा फिर से देख लें. इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह. So चलिए. thank you once अस्सलामुअलैकुम। again. Thank you very much. जी वालेकुम Ikra is अस्सलाम. there. जी जी, इकरा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का मेहरबानी, बिल्कुल ठीक ठाक. इट्स वेरी नाइस टू मीट यू।
as it was my Thank you first very much. Pleasure is all workshop. mine, and I'm grateful to you as well, Mubahis, कि आप Thank you. इसमें से तो giving me this opportunity, और अल्लाह करे कि ये आगे ये सिलसिला चलता रहे, और इसको हम कभी फेस टू फेस सेशन में भी कहीं कन्वर्ट करें, कहीं हम लाइव ऑडियंस के साथ, जिसमें और कुछ नहीं तो ऑडियंस की वीडियोस हो, ताकि वो एक इंटरेक्टिव चीजों को है ना, वो जरा एलिमेंट रहता है जरा। तो उसमें मेरी सजेशन ये होगी कि नेक्स्ट टाइम इसको हम वीडियो ओपन सेशन के तौर पे भी हम रन कर सकें। सर वो हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक जो पॉइंट था वो ये था कि इंटरनेट काफी दफा स्लो हो जाता है अगर सबकी वीडियोज ऑन हो, तो जो प्रेजेंटेशन है ना वो चलनी चाहिए, बाकी चीजें फिर बाद में हो हाँ, जाती हैं। बाकी चीजें तो वो सेकेंडरी हो सर जाती हैं। ठीक है, चलें जनाब, सर थैंक यू सो वेरी मच जी। मगरिब का वक्त हो चुका है, तो अब मैंने इसीलिए टाइम रखा था कि बाय द टाइम आई फिनिश अप, तो उसके बाद मगरिब की नमाज हम पढ़ें। तो दुआ में सर याद रखिएगा जी। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन, एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफ़िज़।